میرے ساتھ نکال لیں چوتھا کلمہ خداوند کے پاک کلام میں متی کی انجیل 27 باب اس کی 46 آیت ہے. ہم 47 تک پڑھیں گے. 46 اور 47 آیات دونوں ساتھ پڑھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے: اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے. آمین. تو جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں اور اس کلمے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم پہلے خدا کی شخصیت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. بہت سے مذاہب میں خدا کے بارے میں مختلف سوچیں، مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں. خدا مختلف طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے. خدا بہت بڑا ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو زمین پر نہیں آ سکتا، جو جسم نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اتنا بڑا، اتنا اونچا اور اتنا بلندی پر موجود ہے. پر بائبل کا خدا جو ہے وہ کیسا محبت بڑا خدا ہے جو زمین پر آیا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی. تو جب ہم اس سب چیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی محبت کیسی بڑی ہے، تو مسیح نے صرف اپنی جان دی. یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت کوئی پڑھ سکتا ہے. یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹکے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی. تو ہم سب بھٹکے ہوئے تھے، پر ہماری بد کرداری کس پہ لا دی گئی؟ مسیح پر لا دی گئی. یسایہ 53 باب صلیب پر جو کام ہوا، خدا نے جو کام کیا، اس کی کمنٹری ہے. جو بھی صلیب پر بات ہو رہی تھی، کام ہو رہا تھا، وہ یسایہ 53 باب میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کیا کام صلیب پر ہوا. تو اسی باب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی گئی. مسیح پر ہمارے گناہ لادے گئے. مسیح جب صلیب پر موجود تھا، اس پر ہمارے گناہ موجود تھے. پہلا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت. کوئی بھی اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے. جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. لکھا ہوا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا. یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، پر اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. یسوع مسیح نے خود کوئی بدی نہیں کی تھی، پر یسوع مسیح کو گناہ ٹھہرایا گیا. ہمارے گناہوں کی، ہماری بدیوں کی وجہ سے یسوع مسیح پر گناہ موجود تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری بدی اس پہ لا دی گئی، اس کو گناہ ٹھہرایا گیا. یسوع مسیح پر ہمارے گناہ موجود تھے. تو جب ہم اس چیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح پر ہمارے گناہ موجود تھے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یسوع مسیح نے خدا ہونا نہیں چھوڑا تھا. لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح گناہ بن گئے تھے. چونکہ یسوع مسیح گناہ بن گئے تھے، اس وجہ سے یسوع مسیح صلیب پر خدا ہونا یسوع مسیح نے چھوڑ دیا تھا. خدا بہت سے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتا. خدا جن کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ خدا ہونا نہیں چھوڑ سکتا. میں نے لکھا ہے وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی ایسا وقت ہو جس میں خدا ہونا چھوڑ دے، تو اگر یہی وہ وقت ہوتا تو کلوری کا پہاڑ جو ہے، آرتھس پرول کہتا ہے کلوری کا پہاڑ اپنی جگہ پہ کس طرح قائم تھا، ساتھ والے پہاڑ کس طرح قائم تھے، سارا دنیا کا نظام کس طرح چل رہا تھا اگر خدا نے خدا ہونا چھوڑ دیا تھا. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنا انکار کرے اور خدا کبھی خدا ہونا چھوڑ دے. یہ ناممکنات میں سے ہے. پر یسوع مسیح کے اوپر ہمارے گناہ موجود تھے، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اس پر ہماری بد کرداری لا دی گئی تھی. جب یسوع مسیح پر ہمارے گناہ
लादे गए थे। तो हम देखते हैं कि जो तस्वीर हमें बाइबल में मिलती हैं खुदा के कहर की, वो ये हैं कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने ये कहा तो खुदा का छोड़ना जो है खुदा के कहर को जाहिर करता है। पहला थस्सलुनीकियों, दूसरा थस्सलुनीकियों 1:9। कोई ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ठीक, तो वो खुदा के चेहरा और उसकी हजूरी से दूर होकर अब्दी हलाकत में जाएंगे, मतलब अब्दी सजा पाएंगे। अब्दी सजा वो पाएंगे खुदा के चेहरा से दूर। क्या खुदा कहीं नहीं मौजूद है? ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर खुदा ना मौजूद। खुदा हर जगह पे मौजूद है, पर जब वो बात करते कि खुदा की दूरी से वो दूर फेंके जाएंगे, तो खुदा की जो फजल वाली दूरी है उससे वो लोग दूर फेंके जाएंगे। तो यीशु मसीह ने जब बाप को कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो दर्द का इजहार था। बाप के छोड़ देना किस वजह से था? यीशु मसीह पर गुनाह मौजूद थे और बाप का कहर यीशु मसीह पे मौजूद था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बात जानने की और समझने की है कि यीशु मसीह के हम जिस्मानी दुखों के बारे में बात करते हैं। बेशक यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पे दुख सहे, पर यीशु मसीह जब सलीब पे मौजूद थे तो यीशु मसीह जो थे उस वक्त में एक खुदा के कहर को महसूस कर रहे थे। अंधेरा हो गया। अंधेरा भी किस चीज को जाहिर करता है? खुदा के कहर को जाहिर करता है। यीशु मसीह रूहानी तौर पे खुदा बाप के कहर को सह रहे थे। उन कोड़ों से बढ़कर, उन कीलों से बढ़कर, कांटों के ताज से बढ़कर हमें सोचने की जरूरत है कि यीशु मसीह सलीब पर खुदा बाप के कहर को सह रहे थे। यशायाह 53 बाब उसकी 10 आयत, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। तो वहां पर लिखा हुआ है और खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। ये हमने क्या बात की? पहले ही हमने शुरू में बात की, जो सलीब पे काम हो रहा था वो हमें ये शायद 53 बाब में समझाया गया है। वहां पे लिखा हुआ है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो पूरी जो सलीब पर काम हुआ वो हमें शायद 53 बाब में समझाया गया है कि क्या काम हुआ। तो सलीब की कमेंट्री जो है ये शायद 53 बाब है। अंधेरा हो गया, ठीक, अंधेरा हो गया। यीशु मसीह ने कहा बाप ने मुझे छोड़ दिया। ये सब कुछ खुदा कहर को जाहिर करता है। मत्ती 22 बाब उसकी 13। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ठीक, तो वो अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। लोगों के बारे में, जो लोग खुदा के लोग नहीं हैं, जिन लोगों ने गुनाह तौबा नहीं की, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र चल रहा है कि उनको बाहरी अंधेरे में डाल दो। और रोना और दांतों का पीसना किस जगह पे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जहन्नम की हमें इमेज बताता है। तो उस जगह पे जब आप सोचते हैं उस वक्त में अंधेरा था, बाप ने बेटे को छोड़ दिया। उस वक्त में बेटा जो था बाप के कहर को सह रहा था। खुदा खादिम जॉन मैकार्थर कहता है कि गॉड ब्रॉट हेल टू कैलवरी, कि खुदा जहन्नम को कलवरी के ऊपर लेकर आया। तो ये वो काम था जो उस वक्त में हो रहा था। जो के लोग जो सामने खड़े थे वो लोग शायद समझते भी नहीं थे और उनकी नजरों में उनको पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। इसी वजह से वो कहते हैं कि ये एलिया को पुकारता है कि एलिया इसे आके बचा, कि एलिया इसको आकर बचाए। तो ये एक वो मजाहिके के तौर पे कह रहे थे कि एलिया को बुला रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और खुद को तो ये बचा नहीं सका, अब ये
एलिया को बुला रहा है कैसे बचाए। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि सलीब पे क्या काम हो रहा था, ये सब अंधेरा हो गया, ये मसीह चिल्लाए, सब काम, हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं इससे पहले अगर हम एक वाक़ये को देखें, जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में मौजूद थे तो वो कहते हैं हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु मसीह दुआ करते हैं कि ये प्याला यीशु मसीह से टल जाए। सवाल ये है कि वो प्याला क्या था, प्याला किस चीज़ का था, प्याला किस चीज़ को जाहिर करता है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं इस चीज़ के बारे में। यीशु मसीह का जो खून था वो पसीने की जगह पर यीशु मसीह का जो खून था वो निकल रहा था, मतलब एक बहुत हद से ज़्यादा टेंशन का माहौल वो जाहिर करता है। पर यीशु मसीह उस टाइम पे कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मुकाशफा 14 बाब 14 बाब उसकी 9 और 10 आई। तो हम ये देख रहे हैं कि उस प्याले में क्या था, जिस प्याले के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस सेवान और उसकी बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। तो यहाँ पे खुदा के गजब की मै का जिक्र हमें मिलता है कि खुदा के गजब की एक मै है जो उन लोगों को पिलाई जाएगी जो खुदा के लोग नहीं हैं, जिन लोगों ने उस जो हैवान है उसके जो मार्क है, जो निशान है वो अपने ऊपर ले ली। तो खुदा के कहर के प्याले को जाहिर किया गया है। यहाँ पर यीशु मसीह भी उसी प्याले के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह दरअसल आप ये सोच रहे हैं, शायद ये भी कोई सोच सकता है कि यीशु मसीह शायद डर रहे थे, ऐसा हरगिज नहीं था। यीशु मसीह खुदा बाप के सामने कामिल तौर पर रफाकत में थे हमेशा से हमेशा तक। अगर यीशु मसीह डर रहे होते तो यीशु मसीह क्यों आते? हमने पिछले इतवार को के भी गुजरा है, हमने देखा कि यीशु मसीह आ रहे थे यरूशलेम की तरफ। क्यों आ रहे थे? क्योंकि मसलूब होना था, उन्होंने मसलूबियत पानी थी, उस चीज़ के लिए वो आ रहे थे। यीशु मसीह को हम कहीं पर भी डरते हुए नहीं देखते, यहाँ पर भी यीशु मसीह को हम दुआ करते हुए देखते हैं। तो इस सारे वाक़ये से भी हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बाप और बेटा जो है कामिल तौर पर एक रफ़ाकत में मौजूद थे हमेशा से हमेशा तक। यीशु मसीह उस रफ़ाकत में जो खलल आने वाला था उसकी वजह से दुख में थे, उस वजह से टेंशन में थे। यीशु मसीह पर गुनाह होंगे और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दी। तो यीशु मसीह उस दुख को जो सहना था, यीशु मसीह ने बाप की जो जुदाई का दुख था वो यीशु मसीह ने जो सहना था, उसकी वजह से यीशु मसीह जो है बहुत ज़्यादा दुखी थे बाग गतसमनी में। पर एक और बात यहाँ पे ऐड करने की ये है कि बाप और बेटे में हम यहाँ पर जुदाई देख भी सकते हैं, पर बाप और बेटा कामिल तौर पे पूरी तरह से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। अगर बाप बेटा रूह कुद्स किसी भी वक्त में किसी भी टाइम में अगर जुदा हो जाएं तो फिर भी दुनिया कायम नहीं रह सकती। बाप बेटा रूह कुद्स तीनों ने दुनिया को कायम रखा हुआ है। यहाँ पे जो जुदाई हम देखते हैं ये हमारा जहन नहीं समझ सकता। हमारा जहन इस जुदाई की एक्सटेंट को, मतलब कि कितनी ये जुदाई थी, कितनी कम थी, कितनी ज़्यादा थी, हम नहीं समझ सकते। खुदा के कहर को जो यीशु मसीह ने सलीब पर सहा पूरा का पूरा, उसको भी हम नहीं समझ सकते हैं। पर हम ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने खुदा बाप के बड़े कहर को सहा और बाप और बेटे में कुछ जुदाई आ गई। हम उसकी मतलब कितनी थी वो हम उस बात को नहीं बयान कर सकते, ना समझ सकते हैं इंसानी तौर पे। जब हम देख रहे हैं इस सारी बात को तो आमतौर पे ये चीज़ बड़ी एक
मैं यही सोच रहा था इन दिनों में कि यीशु मसीह के बाप के कहर को सहना, खुदा के कहर को सहना, ये कोई चर्चेज में आमतौर पे नहीं बात बताई जाती। चर्चेज में बस बताया जाता है कि लोगों ने बड़ा जुल्म किया, लोग आगे, लोग बड़े गुनाहगार थे, लोग बड़े जालिम थे, लोगों ने बड़ा जुल्म किया, लोग बुरे थे, गलत काम किया। बेशक लोग बुरे थे, उन्होंने गलत काम किया, लोग जालिम भी थे, पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा काम जो सलीब पे हो रहा था वो बाप के कहर को सहने का था। हम देख सकते हैं एक और वाला रोमियो 3 बाब उसकी 25 आयत। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको खुदा ने एक कफारा ठहराया ना, कफारा ठहराया। कफारे के लिए जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ये है कि खुदा के कहर को मुतमईन करना, कहर को मुतमईन करना। खुदा के कहर को किसने मुतमईन किया? यीशु मसीह ने मुतमईन किया। हमने क्या पढ़ा इससे पहले? और खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने यीशु मसीह ने पूरा का पूरा बाप के जो है कहर को अपने ऊपर ले लिया, उस प्याले को पूरा पिया ताकि हम खुदा के फजल के प्याले को पी सकें। पूरे का पूरा कहर उसने अपने ऊपर ले लिया। इसी वजह से तो हम कह सकते हैं कि पास जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, पास जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म क्यों नहीं? क्योंकि पूरी की पूरी सज़ा मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी। यीशु मसीह ने बाप से जुदाई को सहा ताकि उसके लोगों को वो जुदाई ना सहनी पड़े जिस जुदाई का हमने जिक्र दूसरे थसलीकियों में पढ़ा, कि वो जो खुदा की फजल वाली हजूरी जो है उससे जुदाई है। खुदा जहन्नम में भी मौजूद है पर खुदा वहाँ पर अपने कहर में मौजूद है। उस जुदाई से बचाने के लिए मसीह ने इस जुदाई को बर्दाश्त किया। तो यीशु मसीह ने जो कहर सहा हम उसको समझ नहीं सकते, उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई को हम समझ नहीं सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा कहर था। ऐसे ही एक दफ़ा पौल वॉशर एक जगह पे कलाम सुना रहे तो उन्होंने उनसे किसी एक शख्स ने सामने खड़े होकर सवाल किया कि कैसे एक शख्स का 3 घंटे तक सलीब पे लटकना जो है इतने ज़्यादा लोगों के कफारे का हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पूरे के पूरे कहर को सह सकता है। तो पॉल वॉशर ने कहा बेशक तूने ये सवाल एक बुरी सोच से किया है पर खुदा का मकसद इसके पीछे अच्छा ही था, तू बैठ जा। उस शख्स को बिठाया उसने, फिर वो कहता है कि दुनिया की हर चीज़, करोड़ों अरबों सितारे सियारे एक तरफ, मसीह उनके सामने एक तरफ, मसीह इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। चूंकि वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है और इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर है, वो 3 घंटे में खुदा के कहर के पूरे प्याले को पी सकता है आखिर तक। कैसा मसीह का बड़ा काम है, कैसा मसीह की बड़ी मोहब्बत है कि इतने बड़े काम को वो इतने से वक्त में पूरा का पूरा कामिल तौर पे पूरा कर सकता है। और कैसी ही मसीह की बड़ी अहमियत है कि वो कितना अहम है और कितना ही इस चीज़ के लायक है कि उसकी प्रस्तिश की जाए, और खुदा के कहर को सहने के लिए भी वो लायक था। तो यीशु मसीह जो यीशु मसीह के साथ था वो डाकू, उसको कैसे कह सकते हैं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा? वो इसी वजह से कह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उसके गुनाह की सज़ा को भी अपने ऊपर ले ली। वो फिरदौस में क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके गुनाह की सज़ा को अपने ऊपर लिया और अपनी रास्तबाजी उसे दे दी। तो जब आज आप सोचते हैं
इस कलमे के बारे में और मसीह के कफ़ारे के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा की मोहब्बत को बड़े तौर पे और मसीह के कफ़ारे की अहमियत और उसकी कीमत को बेहतर तौर पे जान सकते हैं। चलिए इनकी बात में पढ़ सकता है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को ज़ूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। ठीक, काफ़ी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यीशु मसीह के ये जिस्मानी दुख को जाहिर करता है। हमने पहले यीशु मसीह के रूहानी दुख को देखा, यीशु मसीह के जिस्मानी दुख को जाहिर करता है। हम ये देखने की ये बात है कि पहले जो 3 कलमे हैं वो यीशु मसीह जो है मतलब दूसरों के बारे में कहते हैं, दूसरों के जिक्र करते हैं, उसमें अपनी माँ का जिक्र करते हैं, उस डाकू का जिक्र करते हैं, उन लोगों का जिक्र करते हैं। अब ये जो बाकी कलमे हैं, जो बाकी 4 कलमे यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं। और यीशु मसीह ने पहले जो हमने कलमा देखा उसमें खुदा बाप से जुदाई का इजहार किया, गुनाह की वजह से जो उस पर मौजूद थे। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपनी प्यास का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। इससे पहले कि हम देखें कि ये प्यास क्या है, हमें यह देखने की ज़रूरत है कि ये प्यास क्या नहीं है। ये प्यास यीशु मसीह को रूहों की प्यास नहीं थी। जितने भी चर्चेज में आपने जाके ये सुना है कि ये प्यास यीशु मसीह को रूहों की प्यास थी, वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि खुदा अगर रूहों का प्यासा है तो इसका मतलब ये है कि खुदा में कोई कमी है। अगर खुदा में कोई कमी है तो इसका मतलब है कि वो खुदा है ही नहीं। खुदा क्यों है? खुदा इस वजह से है क्योंकि वो कामिल है, अपनी कामिलियत की वजह से वो कामिल है। खुदा को जरूरत नहीं थी किसी भी इंसान की। प्यास कमी को जाहिर करती है। खुदा को आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। खुदा ने जब करोड़ों अरबों सितारे सियारे कुछ भी नहीं बनाया था, खुदा बाप बेटा रोल कुछ मौजूद थे, बाहमी रफाकत में थे, अपने लिए पूरी तरह से कामिल, पूरे और काफी, किसी की भी जरूरत नहीं थी। खुदा का जलाल खुदा ने दिखाना था, खुदा की मर्जी थी, खुदा ने दुनिया को बना दिया। खुदा को रूहों की प्यास नहीं है, खुदा को रूहों की जरूरत हरगिज नहीं। यीशु मसीह यहाँ पर प्यास की बात करते हैं तो यीशु मसीह अपनी जिस्मानी प्यास का जिक्र करते हैं। यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे प्यासे थे। यीशु मसीह जो थे रूहानी तौर पे बेशक खुदा के कहर के प्याले को पी रहे थे, जिस्मानी तौर पे भी उन्हें प्यास लगी। और आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो यीशु मसीह को प्यास क्यों लगी, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो इसका समझने के लिए हमें थोड़ा सा मसलूबियत के बारे में बात करने की ज़रूरत है कि मसलूबियत के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि मसलूबियत कैसे थी, क्यों थी और कब दी जाती थी। मसलूबियत आम लोगों को नहीं दी जाती, सलीब जो आम लोगों को नहीं दी जाती थी, रोमियों को तो पहली बात दी नहीं जाती थी। किन को दी जाती थी? जो बहुत बड़े, जो हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने कोई बगावत की हो, उनको मसलूब किया जाता था। पैंतुस पिलातुस ने यीशु मसीह को क्यों मसलूब करवाया? क्योंकि लोग कह रहे थे, लोगों के कहने पर उसने यीशु मसीह को मसलूब करवाया। यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस वजह से यीशु मसीह को सलीब दी जाती। लोगों के कहने पर, लोगों को खुश करने के लिए उसने ये काम किया। और फिर जब हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, तो यीशु मसीह को रात को मतलब पकड़वाया गया अंधेरे में यीशु मसीह को पकड़वाया गया और वो लोग यीशु मसीह को ले गए। यीशु मसीह पैंतुस पिलातुस के सामने हाजिर हुए, हेरोदीस के सामने हाजिर हुए, फिर पैंतुस पिलातुस के सामने हाजिर हुए। तो यीशु मसीह जो थे काफ़ी टाइम से यीशु मसीह जो थे प्यासे थे। इन सब टाइम में
ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ یسوع مسیح کو کسی نے پانی دیا ہو۔ یسوع مسیح، پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے۔ کوڑے کوئی عام وہ کوڑے نہیں تھے، کوڑے جس طرح عام طور پہ دکھائے جاتے ہیں وہ عام کوڑے نہیں تھے۔ کوڑوں کے آگے بال لگے ہوتے تھے اور جو میٹل کے بال لگے ہوتے تھے اور جو تھی ہڈیاں لگی ہوتی تھی، تو جب وہ کسی کو لگتے تھے تو اس کے ساتھ گوشت بھی باہر آتا تھا۔ تو عام طور پہ مشہور ہے کہ یسوع مسیح کو 1:40 کوڑے لگے۔ ایسا نہیں ہے، وہ جو کوڑے مار رہے تھے وہ رومی تھے، تو رومی جو تھے وہ 1:40 کوڑے نہیں مارتے تھے، 1:40 کوڑے جو تھے وہ مارتے تھے یہودی لوگ مارتے تھے۔ یسوع مسیح کو کون کوڑے مار رہے تھے؟ وہ رومی مار رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو بہت بار بائبل میں نہیں کہیں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ یسوع مسیح کو 1:40 کوڑے مارے گئے، وہ پولس رسول کو مارے گئے تھے، کہیں پہ بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ پولس رسول جو بتاتا ہے کہ اسے بہت بار مارا۔ تو جب وہ کرتے تھے تو خون نکلتا تھا، حد سے زیادہ خون نکلتا تھا۔ عام طور پہ جو لوگ جن کو وہ کوڑے لگتے تھے وہ لوگ بچتے ہی نہیں تھے، لوگ جو تھے بچتے ہی نہیں تھے، لوگ اس کو سروائیو کر ہی نہیں پاتے تھے، لوگ ادھر ہی جب ان کو کوڑے لگ رہے ہوتے تھے اسی ٹائم پہ مر جاتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یسوع مسیح گناہ سے پاک تھے، یسوع مسیح ہماری بھی پاک تھے، تو یسوع مسیح میں طاقت تھی کہ اس کو وہ سہ سکیں۔ پر جب یسوع مسیح کے اوپر جب ان لوگوں نے صلیب کا ایک حصہ رکھا، پوری کی پوری یسوع مسیح پہ صلیب نہیں موجود تھی، یہ جو آپ کو لوگ مطلب جو دیکھتے ہیں، شاید آپ فوٹوز میں بھی دیکھتے ہیں یسوع مسیح پوری صلیب کو لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صلیب کا ایک حصہ جو تھا وہ رکھا جاتا تھا اس شخص کے اوپر، وہ لے کر جاتا تھا، دوسرا حصہ پہاڑ پر ہی موجود ہوتا تھا۔ تو یسوع مسیح کے اوپر صلیب کا جو ایک حصہ وہ رکھا گیا، یسوع مسیح اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اس وجہ سے جو تھا شمعون نے اس کو یسوع مسیح کی جگہ پہ اٹھایا۔ ان لوگوں کو کوئی شخص چاہیے تھا اس کی جگہ پہ صلیب اٹھانے کے لیے، تو وہ شخص شمعون تھا۔ شمعون وہ اٹھا کے لے کر گیا یسوع مسیح کو، جو ہے پھر اس کے بعد یسوع مسیح کو جو تھے کیل لگے۔ کیل چھوٹے موٹے کیل نہیں تھے جو آپ کے نظر آتے ہیں، کیل وہ بڑے کیل تھے جو چھید دیں اور پیچھے جا کے صلیب میں گڑ جائیں۔ تو ہاتھ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہاں سے لے کر یہاں تک تھا۔ ہاتھ جب وہ کہتے تھے وہ اتنا سا ہاتھ نہیں، مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک تھا، اور وہ یہاں پر کیل لگاتے تھے۔ جب وہ آپ کی رسٹ میں کیل لگاتے تھے تو آپ یہاں پر ایک نرو ہوتی ہے، کبھی یہاں پہ ٹچ کرے اس طرح زور کا تو آپ کو تھوڑے سی ٹچ سے درد ہوتا ہے، تو وہ اس میں سے ہو کر گزرتی تھی اور انسان بالکل ایک وقت کے لیے دہل جاتا تھا، اور کیسا وہ درد ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور بیان بھی کرنا ناممکن ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ کانٹوں کا تاج کوئی عام یہ جو آپ کے پھول یہاں پر ہوتے ہیں ان کے کانٹے نہیں تھے، وہ بڑے بڑے کانٹے ہوتے تھے، بڑے بڑے کانٹے کافی ہوتے تھے۔ جب وہ سر میں لگائے جاتے تھے تو وہ اوپر سے مطلب کھب جاتے تھے اور وہ اوپر سے مار رہے تھے کہ وہ سر کے اندر تک وہ چلے جاتے تھے۔ یسوع مسیح صلیب پر موجود تھے۔ صلیب پر یسوع مسیح کو جب اوپر لٹکایا گیا تو کانسیپٹ یہ ہے، صلیب پر جب لٹکائے جاتے تھے لوگ تو جو تھے ہاتھ اوپر پاؤں نیچے، پاؤں میں بھی کیل لگتے تھے، ہاتھوں میں کیل لگتے تھے۔ جب وہ کیل لگائے جاتے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا پاؤں میں کیل لگانے کا کہ بندہ جو ہے وہ سانس لینے میں اس کی مدد ہو، کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک طرح سے لٹک جائے تو اس کے لیے سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا رحم ہے کہ سانس لینے مدد کر رہے ہیں، یہ کوئی رحم نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کے اندر سے وہ سانس نکلتا تھا، وہ جب انسان سانس لیتا تھا اسے درد ہوتا تھا، انسان کو وہ سانس لیتے ہوئے بھی مشکل ہوتی تھی، اور اس وجہ سے وہ سانس لینے کا جو پورا کانسیپٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ مصلوبیت کو لمبا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لمبی ہو سکے مصلوبیت، اس کو لمبا کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کرتے تھے۔ یسوع مسیح خون کے بہنے کی وجہ سے اور اتنا دکھ سہنے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹڈ تھے اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں
प्यासा हूँ। तो ये है पूरी बात कि यीशु मसीह ने अपनी प्यास का जिक्र किया, और यीशु मसीह ने अपनी प्यास का जब जिक्र किया तो देखने वाली बात क्या है कि वो जो हर जान को पानी देता है, जिसने पानी को खुश्की से लदा किया, शुरू में जिसने पानी को बनाया, वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। उसके पास पानी की कमी नहीं थी, वो चाहता तो अपने लिए पानी कहीं से भी पैदा कर सकता था, पर उसने मसलूबियत को सहना था, उसने ये दुख भी सहना था, और उसने नबूवत को पूरा करना था। वो नबूवत जो हम देख सकते हैं ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। जी, तो यहाँ पे यीशु मसीह को इंद्रायण भी उन्होंने देने की कोशिश की थी। यीशु मसीह ने उसे चखा और यीशु मसीह ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि असल में वो एनेस्थीसिया के तौर पे देते थे कि कोई शख्स जो है जो स्लीप पर है उसका दर्द कुछ कम हो जाए, इसलिए वो देते थे। पर यीशु मसीह जो थे पूरे होश में रहना चाहते थे। यीशु मसीह चाहते थे कि पूरे के पूरे दर्द को वो सह सकें और पूरी तरह से अपने होश में रहे और नबूवतों को वो पूरा कर सकें। तो लिखा हुआ है कि पित मिली हुई मैं जो है यीशु मसीह को वो दे रहे थे, यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट किया, यीशु मसीह ने उसको नहीं पिया। पर अब यीशु मसीह ने जो थी इसको जो है यीशु मसीह को प्यास लगी और यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने अपनी प्यास का इजहार किया और फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह को कुछ उन्होंने दिया, जो कि लिखा हुआ है 29 आयत में कि वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। तो इन्होंने जो है एक बर्तन जो वहाँ पर था उसमें कुछ पड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह को उन्होंने जो था जूफे की शाख पे रख के उन लोगों ने देने की कोशिश की। तो आमतौर पे सोचा जाता था कि ये जो ड्रिंक थी ये उनके लिए थी, जो मतलब लोग कहते हैं कि ये उन सिपाहियों के लिए थी। अब ये हमें पता नहीं है कि ये किस वजह से वहाँ पर मौजूद थी, पर जो हम देख सकते हैं कि जो है स्पंज से जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह पर लगाया। तो ये जो लोग थे, ये जूफे का जो इस्तेमाल था वो इसराइली लोग बेहतरीन तौर पे समझ सकते थे, जिनके लिए यूहन्ना लिखता भी है कि जूफे को उन्होंने इस वजह से इस्तेमाल यहाँ पर किया। मतलब ये इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि जो जब उस फरिश्ता ने आना था लोगों को मारने के लिए, तो बाहर जो थे जो चौखटों पर जो था खून जो लगाया गया था वो जूफे के इस्तेमाल से लगाया गया था। तो ये उस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि वो कफ़ारे के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये भी कफ़ारे के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। जिस तरह से वो लोग बच गए, ये भी कफ़ारे के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। अब जब हम इस सारी बात को देखते हैं, यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पे दुख सहा, प्यास सही, दर्द सहा, ये सब चीज़ जब हम देखते हैं, खुदा जो अपने लिए कामिल और काफ़ी था, हमारे लिए ज़मीन पर आया, इंसान बना, हमारे लिए उसने प्यास को भी सहा। कैसी खुदा की बड़ी मोहब्बत है कि खुदा ने ऐसा काम किया, जो अपने लिए कामिल और काफ़ी था, उसने आकर इस ज़मीन पर ज़रूरत को भी महसूस किया। आखिर में आपको एक तमसील सुनाता हूँ जो यीशु मसीह ने सुनाई। एक शख्स था, उसका नाम लाज़र था। एक अमीर आदमी के पास वो जाता था, तो अमीर आदमी जो था वो अमीर था, वो उसको कुछ नहीं देता था।
दोनों मर गए। एक जगह पर वो मौजूद है जहाँ पर अमीर आदमी जो है वो जहन्नम में मौजूद है, पर लाजर जो है वो मौजूद है बाप इब्राहिम की गोद में। अब जो उनके दरमियान में कॉन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो हमें बताई गई है कि अमीर आदमी कहता है कि किसी को भेज ज़मीन पर, वो जाके मेरे भाइयों को बताए, और लाजर से कहे कि अपनी उंगली पानी में डुबाए मेरी ज़ुबान पे आके लगा दे। उसको जहन्नम में प्यास लगी। ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो जहन्नम में प्यासा था। यीशु मसीह ने सलीब पर प्यास को सहा ताकि उसके लोगों को जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिनको उसने चुना है, उन लोगों को उस प्यास को जहन्नम में ना सहना पड़े। मसीह ने कैसा बड़ा काम किया, कैसी बड़ी मोहब्बत करके दिखाई है। रूहानी तौर पे भी कहर को सहा, जिस्मानी तौर पे भी कहर को सहा। किसके लिए? हम जैसे गुनाहगारों के लिए जो उसकी मोहब्बत के लायक ना। किसी रासबाज के लिए शायद भी अपनी जान दे, पर मसीह उस वक्त जब हम गुनाहगार ही थे तो हमारी खातिर मुआ। जब खुदा की बड़ी मोहब्बत को हम देखते हैं, मसीह के बड़े काम को देखते हैं, तो हमें अपनी मोहब्बत पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारी मोहब्बत कहाँ पर है। मसीह ने इतनी बड़ी मोहब्बत करके दिखाई, जिस कहर को हम बयान भी नहीं कर सकते, वो कहर सह लिया। हमारी मोहब्बत कहाँ पर है? खुदा खादिम पॉल वॉशर एक मिसाल देता है, एक बड़े डैम की मिसाल वो देता है। एक डैम था जिसके आगे एक बंद लगा था, एक बहुत बड़ा डैम था। कोई भी शख्स जो है शहर में उस बंद के टूटने के बाद बचने वाला नहीं था। वो सारे के सारे पानी ने लोगों पे आ जाना था और लोगों ने मर जाना था। कोई भी ऐसा शख्स, बेहतरीन तैरने वाला भी नहीं बच सकता था। पर जब वो डैम टूटता है और लोगों के ऊपर पानी आने लगता है, एकदम से ज़मीन खुलती है, सारा का सारा पानी उसमें चला जाता है, उन लोगों की कैसी बड़ी खुशी होगी कि उस पानी से, उस कहर से वो लोग बच गए। जब हम हमेशा की मौत तो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जिसके बारे में लिखा है जो अब्दी मौत है, और उस कहर के बारे में लिखा हुआ है जिससे लोग बचने के लिए कहते हैं कि हम अभी ख़त्म हो जाए, बड़ी कोई चीज़ आके हमारे ऊपर गिर जाए पर हम बच जाएं। उस बड़े हमेशा के कहर से, खुदा के बड़े कहर से बचाए जाने वाले लोग जो है कैसे खुदा की बड़ी मोहब्बत को देख के मोहब्बत में जवाब नहीं देते और खुदा के जलाल के लिए जीने की कोशिश नहीं करते। हमें खुदा की जब बड़ी मोहब्बत को देखते हैं तो हमें भी खुदा से बड़ी मोहब्बत करने की ज़रूरत है, खुदा की बड़ी मोहब्बत को जानने की ज़रूरत है, अपनी खुदी का इनकार करने की ज़रूरत है। आखिर में ये बात है कि मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा खुदी के इनकार के बारे में, तो उसने बोला जब हम खुदा की मोहब्बत को जानते हैं तो खुदी का इनकार करना भी आसान हो जाता है, खुदा के लिए कुर्बानी देना भी आसान हो जाता है जब हम खुदा की बड़ी मोहब्बत को जानते हैं। और खुदा की बड़ी मोहब्बत को हम किस तरह से जानते हैं? हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि हमने नहीं बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की और अपनी जान हमारे दी। हम मोहब्बत को इसी से जानते हैं। जब हम मोहब्बत को इससे जानते हैं तो हमें अपनी मोहब्बत के बारे में सोचने की ज़रूरत है और खुदा से मोहब्बत में जवाब देने की ज़रूरत है। अपने गुनाहों से को तर्क करने की ज़रूरत है, खुदा के जलाल के लिए जीने की। खुदा इस्लाम के वसीला से आपको आमीन। आपने खुदा के हम जैसे गुनाहगारों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। खुदा इस कलाम को हम सुनने वाले, समझने वाले बने, खुदा अमल करने वाले बने। खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजले आम के लिए, फजले खास के लिए जो तूने हम जैसे गुनाहगारों के लिए किया। खुदा हम तो इस लायक ना थे खुदा, जिस लायक आपने हमें बनाया। हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी बेतना मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदावंद आपका ही शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद उस डाकू के लिए खुदा कि जिसने खुदावंद उस सलीब के ऊपर आपके ऊपर ईमान लाया। खुदा ये आपने ही ये मुमकिन किया। खुदा तेरी
शुक्र गुजारी करते हैं इस बात के लिए खुदा कि तू खुदा दुख की हालत में था, तकलीफ की हालत में था खुदा, फिर भी खुदा तूने इस इंसान को माफ़ किया और खुदा उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को खुदा अपने ऊपर लेकर खुदा पाक कर दिया खुदा। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं इस बड़ी कुर्बानी के लिए, इस बड़े कफारे के लिए खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं खुदावन। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है खुदावन, तू ही खुदावंदों का खुदा है और तू ही बादशाहों का बादशाह है खुदा। हम इंसानों के लिए खुदा तू इस दुनिया में आया और दुख उठाया और सलीब पर जान दी खुदावंद। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस कलाम के लिए खुदा जेवे कलमे के लिए खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा। तू दुख की हालत में भी था खुदा और फिर भी खुदा तूने सब कुछ बाप की मर्जी को पूरा किया खुदा। इस बात के लिए खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। ये सब कुछ खुदावन तू ही कर सकता था खुदा, कोई और नहीं कर सकता था खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावन ये सब कुछ मानते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन के मसीह के नाम से, आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, तशरीफ रखिए। खुदावन का शुक्रगुजार है कि खुदावन ने अपने इन दिनों में शामिल होने के लिए हमें फजल बख्शा। मैं भाई के साथ बात कर रहा था सुबह, एक भाई के साथ, कि मैं सोच रहा था कि खुदा की जितनी चाहत से हम सुबह उठे हैं, टाइम की पाबंदी की है, काश कि ये टाइम जो है हमारे लिए एक हकीकी बन जाए कि हम हर रोज़ उस खुदा की तमजीद करें और सताइश करें जिसने हमारे गुनाहों को सलीब पर जड़ दिया और वो अजियत जो हमारी थी उसने बर्दाश्त की, उसने वो प्यास जो हमारी थी। जब इब्राहिम उस गोद में था तो वो अमीर आदमी जो था वो प्यास में तड़प रहा था। ये मेरी और आपकी सजा थी जो मैंने और आपने सहनी थी, पर मेरे और आपके खुदा ने वो सलीब पर सही और कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं। उसने अपना फिदिया ऐसे दिया कि जैसे बेज़बान बर्रा होता है जो बोल नहीं सकता अपने मालिकों के पास। खुदा का शुक्र है कि भाई ने आपको सबके सामने बड़े अच्छे तरीके से कलमात को पेश किया और मुझे छठा कलमात दिया गया, जैसा कि भाई ने आपके सामने पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब की उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। अजीज़ों, छठा कलमा फतह का कलमा भी कहा जाता है। जब खुदावन यीशु मसीह ने फतह मंदी का ये नारा मारा कि तमाम हुआ, तो जब हम यूनानी जुबान में इसको देखते हैं तो इसका मतलब है इट इज कंप्लीटेड, इट इज परफेक्टेड, कि ये काम अपनी तकमील को पहुंचा, तमाम हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद कोई और चीज नहीं रही जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। यूहन्ना की इंजील का आगाज खुदावन यीशु मसीह के तजस्सुम से होता है। तजस्सुम से मुराद कि खुदावन यीशु मसीह अज़ल से खुदावंद हैं, जो इंसान बनकर जिस्म का रूह दार कर खून और अब्दी वाला हकीकी बदन तैयार करके इस दुनिया में आया। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में इस हकीकत को खोलकर बयान किया गया है। और दिलचस्पी की बात यह है कि यीशु मसीह के तजस्सुम के बाद यूहन्ना की इंजील की इब्तिदाई ही बाब में इसका भी ऐलान कर दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों मुजस्सम हुआ, यहूदा का बब्बर क्यों बड़ा बना, हुक्मरान क्यों खादम बना, बादशाहों का बादशाह क्यों हलीम बना और खादम की शक्ल इख्तियार करके इस दुनिया के मुशाबे हो गया। वहां लिखा है, देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यह है यीशु मसीह के तजस्सुम होने का मकसद कि यहूदा के कबीले का बब्बर
बरा बन के दुनिया में आया ताकि दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए कामल कुर्बानी खुदा बाप के हजूर पेश करके हमारी निजात, मखलसी, माफी, रिहाई, आजादी और हमेशा की जिंदगी का अंजाम कर दे। यहां पर खुदावन यीशु मसीह फतह का ऐलान करते हैं कि तमाम हुआ। वो जीत का नारा लगाते हैं कि तमाम हुआ। वो कहते हैं कि मैंने अपनी तस्लीब के जरिया से वो काम को पूरा किया जिसके लिए मैं मुजस्सम हुआ, जिसके लिए मैं इंसान बना, जिसके लिए मैं खादम बना। मैंने सलीब पर अपनी कुर्बानी देकर इंसान बनने का मकसद पूरा कर दिया, इंसान बनने का हक जुटा दिया। अजीजों, ये कलमा फतह का कलमा है, ये कलमा फतहमंदी की ललकार है, ये कलमा जीत की ललकार है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे हाल और माजी और मुस्तकबिल के गुनाहों को खत्म कर दिया। उसने वो नविश्ते, वो पेशनगोइयां पूरी कर दी। अगर हम अहबार की किताब का मुतालिया करें तो वहां हमको पता चलता है कि खुदा ने बनी इसराइल को, बनी यहूदियों को अपनी शरीयत दी कि अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने गुनाहों के कफारा के लिए उन्होंने कैसे कुर्बानियां पेश करनी है। और अगर कोई जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकता था तो वो दीगर चीजें किस तौर से बतौर सदका पेश करें। पूरे पुराने अहदनामा में हमें जानवरों के खून का दरिया बहता नजर आता है, लेकिन मेरे अजीजों, जानवरों की कुर्बानी गुनाह के जोर को मकूफ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो कुर्बानी आने वाली कामल और हकीकी कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। और वाज़ेह था कि ना तो इंसान अपने गुनाहों की तरफ कफारा बचा सकता है और ना ही किसी कुर्बानी से अबदी निजात हासिल कर सकता है, जब तक किसी और जरिया से मदद फराम होकर इंसान की जिंदगी ना बच जाए। इंसान के लिए बचने की मेरे जीजों कोई राह ना थी, और ना ही बरा की कुर्बानी के बगैर हम रास्तबाज हो सकते थे, और ना ही बरा की कुर्बानी के बगैर हम बच सकते थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सिर्फ एक बरा इस कुर्बानी को गुजराने का अहल था और उसका नाम था यीशु अल मसीह। यीशु मसीह इस मकसद को पूरा करने के लिए आया कि अपनी जिंदगी हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान देकर हमारा अब्दी कफारा करे, ताकि खुदा बाप तक हमारी रसाई के दरीचे खुल जाए। यीशु मसीह ने इस मकसद को पूरा किया जिसको अंजाम देने के लिए वो इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने सलीब पर नारा लगाया, तमाम हुआ। यह फतह का नारा था, और उसने निजात के लिए वो रास्ते को हमवार कर दिया, जिसे बस वो इंसान अपनी लियाकत से, अपनी अकल से, अपनी रास्तबाजी से, कुर्बानियां चढ़ाने से, सदके देने से, हदिया नजराने पेश करने से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के बदले खुद कीमत अदा कर। और कलाम यसाया बाप उसका 53 बाप में लिखा है कि तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गुनाहों, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के बाइस घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाए। हम सब बेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। कलाम में लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर हमेशा की जिंदगी हो जाए, खुदा की रास्तबाजी में शामिल हो जाए। इसी सबब से सलीबी मौत के वसीला से हम खुदा के खानदान के फर्जंद बन गए।
اور اس کے خون نے ہمیں کامل اطمینان بخشا. اسی طرح عدن سے وہ شروع ہونے والی جو جنگ تھی اس کا اختتام ہوا. وہ جنگ جو عدن سے شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور فتح ہمارے قدوس خداوند یسوع مسیح اور نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ہوئی. اور اس نے فتح کا نعرہ مارا کہ تمام ہوا. اب وہ سب جس کی ہمیں ضرورت تھی یسوع مسیح میں ہماری زندگی کی برکت ہے اور وسیلہ صرف یسوع المسیح ہے. صلیبی سچائی کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کے خاندان کے فرزند بن گئے. صرف فرزند ہی نہیں بلکہ خدا باپ کی حضوری میں مقدسوں کے درجہ تک بھی پہنچ گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس صلیب کی طرف دیکھ کر ان دکھوں کو محسوس کر کے ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں, کیونکہ سب کچھ تمام ہو چکا اور مسیح نے وہ فتح کا نعرہ مارا کہ تمام ہوا. عزیزو, بائبل مقدس ہمیں تسلی دیتی ہے کہ یسوع مسیح کے صلیبی موت برداشت کرنے کے وسیلہ سے ہمارے گناہ ڈانپ دیے گئے اور ایمان کے وسیلہ سے ہم نے اس کی راست بازی کو پا لیا. ایمان کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی کو ہم پاتے ہیں. ایمان کے وسیلہ سے مقبولیت میں شامل ہو کر ہم اپنے گناہوں کے بوجھ اور گناہ گار ہونے کے الزام سے بری ہو جاتے ہیں. اسی نتیجہ میں جب خدا ہم پر نظر کرتا ہے تو خدا کو ہم میں مسیح کی راست بازی نظر آتی ہے. مسیح نے خود مجرم ٹھہرا کر ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا. کیا ہی خوبصورت خدا کی محبت ہے. اور مسیح نے وہ سارا کام ختم کر کے کہا کہ تمام ہوا. آخر میں ہم سب کے لیے ایک ایپلیکیشن ہے کہ مسیح نے کہا کہ تمام ہوا. اگر ہم ایماندار ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو صلیب کے پیغام کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. آئے جنہوں نے ایمان سے یسوع کو قبول کیا ہے اپنی زندگی میں ہر روز اس بات کا اعلان کریں کہ تمام ہوا. ہمیں چاہیے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم ہر راست بازی سے نجات حاصل کر سکیں, ان کو بتائیے کہ تمام ہوا. جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی راست بازی سے بچ جائیں گے, انہیں بتائیے کہ تمام ہوا. جائیں ان کے پاس جو قربانیاں کرتے ہیں کہ خدا کو خوش کریں, جائیں ان کے پاس, ان کو بتائیے کہ تمام ہو چکا. جائیں ان کے پاس جو اپنے ہدیوں نذرانوں سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتائیے کہ تمام ہو چکا. جائیں ان کے پاس جو کہتے ہیں کہ اب کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا, ان کو بتائیے کہ تمام ہو چکا. جائیے گناہ گاروں کے پاس اور ان کو بتائیے کہ تمام ہو چکا. اور ان کے تمام کیے گئے کام میں خوشی منائیں اور مت سوچیں کہ ہم اس کاہل نہیں, کیونکہ خدا کو آپ کی کاملیت نہیں, آپ چاہیے. خدا کو آپ چاہیے, آپ کی کاملیت خدا کو نہیں چاہیے. آپ کا دل خدا کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے. خدا آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے تمام کیے گئے کام کا فضل عطا کرے. آمین. لوکا کی انجیل 23واں باب اس کی 44ویں آیت سے لے کر کے 46ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اور خداوند کے بابرکت کلام میں کچھ مرقوم ہے. پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے ہٹ گیا. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. آمین. میری درخواست ہے اپنی جگہوں کے اوپر تشریف رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم چھوٹے ہوتے ہوئے موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو موویز کے اندر کسی سین کو
ट्रेजिक बनाने के लिए या इस तरीके से ट्रेजेडी होगी या कोई बहुत बड़ी दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, फर्ज करें एक बंदा मर गया है तो दिखा देंगे कि एकदम से बिजली का शोर और बारिश होना शुरू हो गया और अंधेरा ही अंधेरा है और काली रात है और पीछे एक खौफनाक सा म्यूजिक जो है क्या है जी, वो चलता है। लेकिन इस इंस्टेंस में और इस जगह के ऊपर जो होता हुआ हमें नजर आ रहा है वो किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हमें नजर आता है कि दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। आज से पहले यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से पहले कितने और लोग थे जिनको सलीब के ऊपर कुर्बान किया गया था, कितने लोगों की अमवात हुई थी। लेकिन आज इस सलीब में और सलीब के ऊपर इस काम में जो हो रहा था, आखिर वो कौन सी ऐसी बात थी कि ऐसा बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। और यूहन्ना की इंजील के अंदर सिर्फ हमें इतनी सी बात नजर आ रही है कि और सारे मुल्क में क्या रहा जी, अंधेरा छाया रहा। 12 बजे से लेकर के करीब 3 बजे तक 3 घंटे सारे मुल्क के अंदर बिल्कुल अंधेरा। और ये अंधेरा सूरज ग्रहण की वजह से नहीं था, ये अंधेरा चांद ग्रहण की वजह से भी नहीं था, लेकिन ये अंधेरा मफूकुल फितरत अंधेरा था। सलीबी मौत में कुछ ऐसा सलीब के ऊपर हो रहा था कि सूरज ने अपनी पूरी आबोताब, जिस वक्त में सूरज अपने पूरे जाहो जलाल के साथ चमकता है, उस वक्त में सूरज ने भी अपनी रोशनी देना बंद कर दी थी और तारीकी छाई हुई थी। आखिर क्या था? सिर्फ तारीकी ही नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ और भी इवेंट्स हो रहे थे जो मत्ती की इंजील में मजीद क्लैरिटी के साथ हमें नजर आते हैं। तो निकालिए मत्ती की इंजील 27वां बाब, खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत से लेकर के 56वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है। अब हम ये देख रहे हैं कि यूहन्ना की इंजील में सिर्फ आया कि अंधेरा छाया रहा, लेकिन अंधेरा ही नहीं था। आगे भी हम देखते हैं, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पास सूबादार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भोंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसीस की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आखिर इस सलीबी मौत में वो क्या बात थी कि 3 घंटे लगातार अंधेरा, अंधेरे के बाद मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फट जाना, जमीन का लरजना, चट्टानों का तिड़कना, कब्रों का खुल जाना और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और वहां पर हमें नजर आता है कि उस जल्जले और चट्टानों के तिड़कने के आई विटनेसेस भी उस जगह के ऊपर मौजूद थे और इन सब चीजों को होता हुआ देख करके वो क्या कहते हैं, बेशक ये खुदा का बेटा मसीह था। तो आइए हम एक तरतीब बनाते हैं। हम 4 बुनियादी चीजों के ऊपर हम आज देखेंगे। नंबर 1, कुछ लोग ये समझते हैं कि अंधेरा जो है यहां पर तशबीहन लिखा गया है क्योंकि जल्जला आ रहा था। फलस्तीन एक ऐसा मुल्क था जहां पर जल्जले आम थे और इस वजह से लोग, क्योंकि उस जल्जलों और शेक कर रहा था सब कुछ, इस वजह से शायद अंधेरा नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हकीकतन अंधेरा था, सूरज ग्रहण की वजह से नहीं, बल्कि सूरज ने अपनी रोशनी को देना बंद कर दिया। तो 4 चीजें जिनके ऊपर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा। नंबर 1, डार्कनेस, अंधेरा। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम गौर करेंगे, मकदस के पर्दे का ऊपर से लेकर नीचे तक चाक हो जाना। तीसरी चीज जिसके ऊपर हम गौर करेंगे, चट्टानों का तिड़कना और जल्जलों का आना। और चौथी चीज जिसके ऊपर हम गौर करेंगे वो है मुर्दों का जी उठना। तो सबसे पहली चीज अंधेरा, जिसका आज हमारे टेक्स्ट के अंदर भी जिक्र है कि दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया।
تو پرانے عہد نامے میں تاریکی جو ہے وہ ہمیں تب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب خدا ججمنٹ کرتا تھا، جب خدا عدالت کرتا تھا. اور یہ جو اندھیرا، ایسا اندھیرا ہونا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ خدا نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ دن کے وقت میں ہی اندھیرا ہو جائے گا. اور ہم ان پیشن گوئیوں کو دیکھیں گے کیونکہ خدا کی عدالت کا کام اس جگہ کے اوپر ہو رہا تھا. خدا عدالت کر رہا تھا. آئیے میرے ساتھ چند حوالہ نکالیے، ہم دیکھیں گے آموس اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت. آتی بات کی 18ویں آیت. تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو. تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں. تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی کیا کرتے ہو؟ آرزو کرتے ہو. تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں. اب تاریکی میٹافوریکلی بھی یہاں پر استعمال ہو رہی ہے کہ وہ روشنی کا دن یا تاریکی کا دن ہے، لیکن حقیقتاً خدا نے پیشن گوئی کی تھی. اب نکالیے آموس 8واں باب 9ویں آیت. تو خداوند کا دن اور ساتھ ہی وہاں پر 5ویں باب کے اندر وہ تاریکی کو کر رہا ہے. اب آپ پڑھیں آموس 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا. آمین. اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا. اب روزے روشن سے کیا مراد ہے؟ وہ ٹائم جس وقت روشنی کے پیک آورز ہوتے ہیں، دوپہر 12 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک یہ دوپہر کا سما ہوتا ہے اور یہ پیک آورز ہوتے ہیں روشنی کے. اور لکھا ہے کہ اس دن کیا لکھا ہے؟ روزے روشن ہی میں کیا کر دوں گا؟ زمین کو تاریک کر دوں گا. ایک مرتبہ پھر سے اس آیت کو ذرا پڑھ دیجئے گا. آموس 8 باب 9 آیت. اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا. نمبر 1 آفتاب دوپہر ہی کو کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا. اور آگے اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا. اور میں روز روشن ہی میں زمین کو کیا کر دوں گا؟ تاریک کر دوں گا. تو اندھیرا خدا کی ججمنٹ کو بتاتا ہے اور خدا نے پہلے سے اس کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا اس وقت میں، عدالت کے وقت میں. یہ پیشن گوئی تھی. اسی کے ساتھ اگر ہم مزید بائبل کے اندر دیکھیں کہ تاریکی ہمیں اور کہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو مصریوں کے اوپر جب خدا نے 10 آفتیں آئیں، ان 10 آفات میں سے جو 9ویں آفت تھی وہ اندھیرے کی آفت تھی. اور اندھیرے کی آفت سے بالکل اگلی آفت کون سی تھی؟ پیلوٹوں کے مرنے کی آفت. تو ذرا حوالہ جات ہم نکال لیتے ہیں. خروج 10واں باب 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. خروج اس کا 10واں باب. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں. اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی. 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا. تو ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت میں یہ خدا کی ایک آفت بھی تھی، اندھیرے کا ہو جانا. اب ہم اگلی آفت کو پڑھتے ہیں جو کہ تھی پیلوٹوں کا مرنا. خروج 11واں باب 4 سے 5 آیت میں پڑھتا ہوں. اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پیلوٹے، فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پیلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پیلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پیلوٹے کیا ہوں گے جی؟ مر جائیں گے. ہم نے 2 چیزیں دیکھی. تاریکی خدا کی ججمنٹ، خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے. خدا نے پہلے سے کہا تھا کہ اس روز روشن ہی سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا اور اپنی روشنی دینا بند کر دے گا. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈارکنیس پریسیڈ ڈیتھ، جو ہم نے یہاں پر دیکھی مصر کے اندر، کہ پہلے تاریکی اور تاریکی کے بعد
अमवात। यहाँ पर सलीब के ऊपर हमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है? ऑन द क्रॉस डार्कनेस प्रिसीडेड द डेथ ऑफ गॉड्स सन। तो वो एक अक्स था और इसकी तस्वीर हमें यहाँ पर इस तौर से नजर आती है कि तारीकी के अंदर अदालत का काम हो रहा था। सलीब के ऊपर खुदा उस दुख को मेरे और आपकी जगह के ऊपर सह रहा था, और सलीब के ऊपर उस अंधेरे के अंदर जिसने अपनी जान दी वो कोई और नहीं बल्कि खुदा बेटा, तसलीस का दूसरा अकनूम, खुदा बाप का हकीकी बेटा। उसने हमारे गुनाहों की खातिर उस जजमेंट के नीचे, खुदा के उस पाक कहरो गजब के नीचे अपनी क्या दे दी थी जी? जान दी थी। हमें नजर आता है कि यहाँ पर खुदा बेटा अपनी जान दे रहा है, और इसका जिक्र हमें पहले ही से नजर आता है। और वो तरीकी जो है वो हमें खुदा की अदालत को दिखाती है। और जो बेशक हमने इससे पहले तमाम कलमों के अंदर देखा कि यीशु मसीह खुदा के रैत को बर्दाश्त कर रहा था, और कैसा बड़ा खुदा का गजब था कि सूरज चांद सियारे सितारे जिसके निज़ाम को बनाने वाला खुदा है, उसने भी अपनी रोशनी को देना बंद कर दिया, और यीशु मसीह खुदा के कहरो गजब को बर्दाश्त कर रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा मसीहा, हमारा इवजी, हमारा दरमियानी उस वक्त के अंदर सलीब के ऊपर मौजूद था। आज से पहले किसी सलीबी मौत के ऊपर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सलीब पर इस वक्त में जो था वो हमारा खुदावंद मौजूद था। गलतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। अब हम देखेंगे कि मसीह ने हमारी खातिर सलीब के ऊपर क्या किया, उस जजमेंट को मसीह ने कैसे बर्दाश्त किया, उस अदालत को मसीह यीशु ने खुदा के उस पाक कहरो गजब को कैसे ठंडा किया। गलतियों का खत 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। मसीह में जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। आमीन। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल ले करके उस लानत से क्या कर लिया जी? छुड़ा लिया, क्योंकि वो उस जजमेंट को बर्दाश्त कर रहा था। 2 क्रंथियों 5वां बाब उसकी 21वीं आयत। 2 क्रंथियों 5वां बाब 21वीं आयत लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। वो गुनाह से वाकिफ ना था मगर उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। तो उस वक्त के अंदर सलीब के ऊपर अदालत का काम जारी और सारी था, क्योंकि उसको उसने हमारे वास्ते क्या ठहराया जी? गुनाह ठहराया। और वो सलूक जो मेरे और आपके साथ जहन्नुम के अंदर, जहां पर अंधेरा, रोना और दांतों का पीसना था, बिल्कुल उसी तरह से उस अंधेरे के अंदर मेरे और आपके हिस्से की जहन्नुम यीशु मसीह सलीब के ऊपर पूरे तौर पर सह रहा था, और उसने वो कहरो गजब का प्याला जो है हमारे मसीहा ने पी लिया। ये है खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा का रैत और जजमेंट और अदालत को वो अंधेरा शो करता है, और उस अदालत में मसीह ये काम कर रहा था। 1 पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत। 1 पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत मैं पढ़ता हूं। लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो सलीब पर यीशु मसीह के साथ वो सलूक हुआ, क्योंकि वो आप अपने बदन पर हमारे गुनाहों को लिए हुए चढ़ गया। और जैसा कि मैंने उस दुआ में भी आपके सामने पढ़ा कि अगर खुदा बाप ने अपने बेटे ही को, जब गुनाह उस पर थे, कुचल दिया, तो वो हमसे क्यों कर ऐसा सलूक नहीं करेगा जो उसके बेटे की रास्तबाजी में शामिल नहीं है। लेकिन उस वक्त में यीशु मसीह उस कहरो गजब को मेरे और आपकी खातिर सह रहा था। तो पहली चीज जो हमने देखी, अंधेरा, वो अंधेरा पेशन गोई थी खुदा की अदालत की। दूसरा हमने देखा कि डेथ, डार्कनेस प्रिसीड डेथ, लेकिन इसके अंदर हमने देखा ऑन द क्रॉस डार्कनेस प्रिसीडेड द डेथ ऑफ गॉड्स सन, खुदा का बेटा हलाक हुआ। दूसरी तरफ हम बढ़ेंगे,
पर्दे का फटना। अब जब हम पर्दे के फटने के ऊपर गौर कर रहे हैं तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। हैकल के 3 मकाम थे, एक सहन, एक पाक मकाम जहां पर काहिन कुर्बानी चढ़ाते थे, और एक पाक तरीन मकाम जिसमें काहिन साल में 1 मर्तबा जाता था, और वो पाक तरीन मकाम तक कोई शख्स जा नहीं सकता था क्योंकि वहां पर खुदा की हजूरी थी, और कोई शख्स खुदा की हजूरी में खड़े होने के लिए हमें खुदा की रास्तबाजी की जरूरत थी, क्योंकि हम इस गुनाहगार नेचर के साथ खुदा के हुजूर में जा नहीं सकते थे। पाक तरीन मकाम, और वो पर्दा जाहिर करता था कि इंसान और खुदा के दरमियान में क्या है जी, एक फर्क है। इंसान गुनाहगार है, खुदा पाक है। खुदा कुदूस 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 है, और इंसान अपने गुनाह में बदतरीन 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 धनसा पंसा और गुनाहगार शख्स है। तो होता क्या था अब हैकल के टाइम के अंदर, साल में 1 मर्तबा जो काहिन जाता था वो बड़े स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ जाता था। प्रोटोकॉल क्या होता था, उसके चौके के साथ जो बेल्ट होती थी, उस बेल्ट के ऊपर स्पेशल घंटियां लगाई जाती थी, और उन घंटियों के साथ पीछे काहिन को एक रस्सा बांधा जाता था, और काहिन जो था अगर तो अपनी बदकारी के अंदर पाक तरीन मकाम के अंदर चला जाता तो वो उसी जगह के ऊपर मर जाता था। तो काहिनों का पाक होना बहुत जरूरी था। तो जब वो साल में 1 मर्तबा जाता तो जब तक घंटियों की आवाज आती रहती, इसका मतलब कि काहिन जो है वो पाक तरीन मकाम में जाकर के उस कुर्बानी को क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, और करके वो बाहर आ जाता। लेकिन अगर घंटियों की आवाज आना बंद हो जाती, इसका मतलब कि काहिन क्या हो गया जी, मर गया है, और उसी रस्सी के साथ वो उसको खींच करके बाहर निकाल लिया करते थे। इतना मुश्किल था पाक खुदा की हजूरी में जाना। लेकिन हमारा ऐसा सरदार काहिन जो खुद अपना खून लिए हुए पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल हो गया, और वो जो जुदाई की दीवार थी उसको उसने क्या कर दिया, जुदा दिया, खत्म कर दिया। और क्या लिखा है, तमाम हुआ। और तमाम हुआ के बाद हमें नजर आता है कि तमाम होने के बाद वाकई ही में तमाम हुआ। मकदस का वो पर्दा जिसको कोई हटा नहीं सकता था, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया जी, फट गया। और मकदस के पर्दे का फटना इस बात की अलामत थी कि खुदा की तरफ और खुदा के पास जाने का रास्ता जो है वो अब खुल चुका है। अब तमाम लोगों के लिए, ख्वाह वो यहूदी और ख्वाह यूनानी, यीशु मसीह के वसीला से वो रास्ता जो है वो क्या हो चुका है जी, खुल चुका है। और ये इंसान का काम नहीं बल्कि खुदा ही का काम था, और यीशु मसीह हमारा इफ्जी बना और जिसने हमारी खातिर वो बड़ा काम किया। इफ्सियों 2:14 आयत जरा निकाल लीजिए। इफ्सियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी क्या किया जी, ढा दिया। अब्रानियों का खत 9वां बाब उसकी 12वीं आयत, अब्रानियों का खत उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत क्या लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। आमीन। एक और हवाला अब्रानियों 10वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत, अब्रानियों का खत उसका 10वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत लिखा है, बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा कायन है जो खुदा के घर का मुख्तार है। आमीन। कैसा बड़ा काम हमारे खुदावंद ने हमारे लिए किया। जमीन का जलजला, बाइबल में हमें जलजला आपको पता है कब आता हुआ नजर आया? बाइबल में हमें जलजला आता हुआ तब नजर आता था जब खुदा कुछ रिवील करता था, या तो खुदा अपनी शरीयत दे रहा था, तब हमें जलजला आता हुआ नजर आता है। तो हवाला जल्दी से हम निकाल लेते हैं और इसको हम खत्म करेंगे। खरोज उसका 19वां बाब उसके 18वें, जब खुदा कुछ रिवील करता है या अपनी शरीयत देता है तो उस वक्त में हमें जलजला आता हुआ क्या होता है जी, नजर आता है। खरूज उसका 19वां बाब और उसकी 18वीं है लिखा है,
اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور آگے ہمیں نظر آتا ہے خداوند موسیٰ کو کہتا ہے تو اوپر آ جا۔ کیا لکھا ہے؟ خدا نے جب اپنا آپ دکھایا اور خدا اپنے جلال کے ساتھ اس پہاڑ پر آیا، وہ پہاڑ جل گیا اور وہ پہاڑ کیا ہوا جی؟ زور سے ہل رہا تھا، کیونکہ خدا اس وقت میں کیا دے رہا تھا؟ شریعت دے رہا تھا۔ سو وارن ویٹسپی جو ہے وہ زلزلے کے اس آنے کو، اور جو ہمیں یسوع مسیح کوہ کلوری کے اوپر جو زلزلہ آتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ایک کنیکشن بناتا ہے اپنی کمنٹری کے اندر۔ وہ کہتا ہے وارن ویٹسپی connects the earthquake of Jesus' death to the Sinai event, suggesting that the earthquake at the Calvary signified that the demands of the law were fulfilled in Christ۔ کہتا ہے اس وقت میں بھی زلزلہ آیا تھا جب خدا نے ظاہر ہو کر کے شریعت دی، جہاں پر شریعت کا تمام قانون جب تمام ہوا، پورا ہو گیا، اس وقت میں بھی زمین جو تھی ہل گئی تھی، کیونکہ خدا نے تمام ہوا کر دیا تھا۔ جس طرح شریعت کے دینے میں زمین خدا کے جلال کو برداشت نہ کر سکی، بالکل اسی طرح اس شریعت یا قانون کے پورے ہونے میں بھی زمین خدا کے جلال کو برداشت نہ کر سکی، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی خدا کے قانون کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اور جتنی وہ سیکریفیشل ڈیمانڈز تھی، ایک ایسا کامل کفارہ کہ جس کے وسیلہ سے راست بازی مل جائے، وہ یسوع مسیح میں کیا ہو گئی تھی جی؟ پوری ہو گئی تھی۔ میں پھر سے اس لائن کو دہرائی دیتا ہوں، جس طرح شریعت کے دینے میں زمین خدا کے جلال کو برداشت نہ کر سکی، بالکل اسی طرح اس شریعت یا قانون کے پورے ہونے میں بھی زمین خدا کے جلال کو برداشت نہ کر سکی، اور زمین ہلی، بھونچال آئے، چٹانیں تڑک گئیں۔ اور پھر آخری جو کہ ہمارا پوائنٹ تھا، مردوں کا جی اٹھنا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کیونکہ قبریں جو تھی نا، ادھر لکھا ہے قبریں کھل گئی، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ زلزلے آ رہے تھے، زلزلہ آیا تو قبریں ہو سکتا ہے زلزلے کی وجہ سے بھی کھل جائیں، اکثر دراڑیں زمین میں پڑ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے قبریں اس کی وجہ سے کھل گئی ہوں۔ یہ قبروں کا کھلنا بڑی بات نہیں تھی، لیکن ان قبروں کے اندر موجود مردوں کا جی اٹھنا یہ بڑی بات ہے۔ اور وہ مردے بھی کیوں جی اٹھے تھے؟ کیونکہ مسیح نے فتح کا نعرہ جو تھا صلیب پر مار دیا تھا کہ تمام ہوا، اور ان مردوں کا جی اٹھنا یسوع کی فتح کو ظاہری طور پر دکھاتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جا کر کے خدا کے نام کی منادی کرنے لگ گئے تھے اور بتا رہے تھے کہ زندہ خدا ہی خداوند ہے۔ یہ ہے یسوع مسیح کی وہ بڑی قدرت، یہ ہے صلیب کے اوپر فتح کی للکار، یہ ہے خدا کا وہ بڑا کام جس میں ہم تسلی پاتے ہیں۔ اور اگر یہ اس طور سے ہوا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آخری جو الفاظ یسوع نے کہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ صلیب کے اوپر یسوع مسیح کی موت کے اس منظر سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا کام ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے؟ صرف یسوع مسیح کا صلیب پر وہ کامل کام ہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور اگر آپ 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے اوپر ذرا غور کریں، 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں، جو کہ یسوع مسیح کی جسمانی پیاس اور جسمانی دکھ اور جسمانی کرب کو دکھاتا ہے۔ 6ٹھا کلمہ یسوع مسیح کے جسم لے کر کے آنے کے کام کے مکمل ہونے کو بتاتا ہے کہ تمام ہوا، اس برہ نے اس مجسم ہونے کے کام کو کیا کر دیا جی؟ مکمل کر دیا۔ اور 7واں کلمہ جس میں یسوع مسیح اپنے باپ کو کہتا ہے، اے باپ، کیونکہ وہ جسمانی طور پر مرنے کو ہے، کہتا ہے لیکن اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں؟ سونپتا ہوں۔ اور جہاں پر یسوع مسیح کا جسمانی طور پر وہ مرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اپنی روح خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کیونکہ ایک دن آئے گا جب ہمارا یہ جسم ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن یہ وہی تصویر ہے کہ خدا نے باپ کے ساتھ ہمیں کیا کر دیا ہے جی؟ ملوا دیا ہے۔ اور ایک وقت ہوگا کہ جب ہم بھی زندہ خدا کے جلال میں اس کے ساتھ کیا ہوں گے جی؟ شریک ہوں گے۔ یہ جسم یہیں پر ہی فنا اور برباد ہو جائیں گے، لیکن ابدی زندگی کا سکون ہمارے پاس صرف مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے۔
بیٹا حقیقتاً بیٹا. اور یہ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ ایک وقت جس دن خدا کی آخری عدالت ہوگی اس دن ہم لوگ بڑے ہی جلال کے ساتھ زندہ خدا کی حضوری میں داخل ہوں گے، جیسا کہ ہم مسیح یسوع کے اس کام میں بھی دیکھتے ہیں. تمام ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ مسیح کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور وہ جلال کے ساتھ اس جگہ پر آیا ہوگا. کیونکہ کیا لکھا ہے؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز اور اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور خادم کی صورت اختیار کی. لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یسوع مسیح کے جسم کے اندر وہ سارا کام مکمل ہو گیا اور مسیح نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہی ہمارے پاس امید ہے کہ جس طور سے مسیح اس جگہ پر ہے، ہم بھی مسیح کے ساتھ اس جگہ کے اوپر جلال کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. کیونکہ بائبل کا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ انسان ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. اس نے کہا تھا میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میرے عزیزو، تمام ہوا میں کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہم لوگوں کو خدا ہی کی ضرورت تھی کہ خدا ہماری جگہ پہ تمام کرتا اس کو، اور خدا ہی نے کیا. ہم کیسے ورک بیسڈ سیلویشن یا اپنے کاموں کے ذریعے سے ملنے والی نجات کے اوپر یقین رکھ سکتے ہیں؟ مسیح کا صلیب کے اوپر کہنا تمام ہوا، یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے نجات ہے. بس مسیح کے تمام کیے ہوئے کام میں ایمان رکھیں، اور جس طریقے سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، بالکل اسی طرح سے وہ جو اس میں ہے جی اٹھیں گے. کیونکہ مسیح نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. خدا آج کی اس عبادت اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے